class 9th. Today we will start chapter 7 triangles of exercise 7.3, page number 128. This is very good questions of the question number 1, and in this question there are 5 questions including the question number 1. So please see the page number 128. We will read first the question and then we start. 4 questions are included. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base. BC and vertices A and D are on the same side of BC. चलिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको. जो मैंने लाइन पढ़ी है, आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है. फर्स्ट P ABC and you have D1. In triangle ABC, we have clearly given that isosceles triangle. तो isosceles triangle होने से AB is equal to AC. AB is equal to AC. Similarly, in triangle, another triangle we have given that DBC. Here we have given a point as D. DBC is also isosceles triangle. That means BD is equal to DC. BD is equal to DC. We can say BD that means CD. हम CD बोलते हैं, ABCD according to alphabet. If AD is extended to intersect BC at P, AD को extend किया गया है P तक, जो BC को P पर intersect करता है. अब आपको प्रूव करना है first. How many sum are included in that? C. First, triangle ABD is congruent triangle ACD. Triangle ABD is congruent triangle ACD. बहुत ध्यान रख के लिखना, अगर एक भी वर्ड गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. ABD, this triangle, okay? This triangle is congruent this triangle ACD. Okay, first. Second we have to prove triangle ABP, this triangle ABP. Triangle ABP is congruent triangle ACP. Got it? Third, see how many questions are included in this. AP bisects angle A as well as angle D. AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 1 और ये 2 मान लीजिए आप एंगल 1 एंड 2, तो आपको AP bisects angle A means angle 1 is equal to angle 2 प्रूव करना है. Got it? As well as angle D और angle D को भी बाइसेक्ट करता है. Suppose this is angle 3 and this is angle 4. As well as B. So therefore angle 3 is equal to angle 4. ये भी हमको प्रूव करना है. Okay? Angle D. We should write as angle D. And fourth point, AP is the perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector. पूरा लिखेंगे आप perpendicular dot it, perpendicular bisector of BC. Means what? AP जो है इस पर perpendicular है, मतलब 90 डिग्री का एंगल पे शो करना है, और means एंगल APB या APC, एंगल APB और एंगल APC is equal to 90 डिग्री. ये तो होगा perpendicular. And bisect means BP is equal to PC. BP is equal to
BC। इतनी चीजें हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट है, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। सिमिलरली यहाँ भी ये स्टेटमेंट था, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। सो स्टार्ट राइट नाउ। फर्स्ट केस C in triangle ABD, in triangle ABD and triangle ACD। चलिए अब इन दोनों में देखते हैं। ABD, this one, okay, and this one, triangle ACD। First, AB is equal to AC given। AB is equal to AC। AB is equal to AC we have given। Similarly, BD is equal to CD। BD is equal to CD। ये भी given है, AB is equal to AC, BD is equal to CD भी given है। It is also given। And third, AD is equal to AD common side। So therefore, triangle ABD is congruent triangle ACD by side। First condition is proved। Got it? अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो we can say angle 1 is equal to angle 2। So therefore angle 1 is equal to angle 2। जो मैं कहा था AP bisect angle A, AP bisect angle A। ये किससे हो गया? CP CP। Thus AP bisects angle A। एंगल A के बाइसेक्टर है 1/2। ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए तो 1/2 इक्वल हो गया। ये भी हम सेकंड कौन सा कंडीशन था? थर्ड कंडीशन भी हम प्रूव। व्हाट इज? अभी हमको एंगल 3 और 4 इक्वल करना है। जब हम ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACD लेंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करेंगे तब आपको 3 और 4 इक्वल हो गया इन दोनों ट्रायंगल को। और वो भी कह सकते हैं हम कि जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो इनका एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल। CP से 3 और 4 भी हम इक्वल कर सकते हैं। इनके इंटीरियर एंगल इक्वल है, CP से एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, बट अपन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आगे चलते हैं अपन। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अगला हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन, ट्रायंगल ABPC। सेकंड केस, इन ट्रायंगल ABP and triangle ABP and triangle ACP, ये सेकंड है आपका जो क्वेश्चन में दिया है। गॉट इट? तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यस। सी in that condition which conditions are given equal ABP and ACP में? ABP and ACP में AB is equal to AC, AB is equal to AC, number 1। number 2, angle 1 is equal to angle 2, we have proved angle 1 is equal to angle 2। this was given, that was we have proved CP से। थर्ड, AP is equal to AP common side, AP is equal to AP common side।
अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल ना बताएं तो आप ये भी बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, किसमें? ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल भी इक्वल होगी, वो भी हम दे सकते थे, ये भी दे सकते हैं। अभी कंडीशन आ गई साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP is congruent triangle ACP by side angle side। ये आपकी सेकंड कंडीशन हैज प्रूव्ड। गॉट इट? ये सेकंड कंडीशन प्रूव है। देन फर्स्ट वी हैव डन, सेकंड वी हैव डन, दिस वी हैव डन, एंड नाउ अभी हम इस कंडीशन को शो करेंगे। सी, आपने यहां पर एंगल 1 और 2 दिया था ना, सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल सीपीसीटी से एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी इक्वल, तो ये दोनों चीज एक हो गए। लास्ट वाले परपेंडिकुलर और इक्वल। सी, अभी हमने एंगल ATE एंड ACP कॉन्ग्रुएंट किया, ये ट्रायंगल इस पर आ गया, मींस BP इज इक्वल टू PC हो गया, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके साइडें इक्वल होंगी। जब BP इज इक्वल टू CP हो गया, BP is equal to CP means क्या कहेंगे हम? AP is the bisector of BC, thus AP is bisector of BC, ये भी हमने बता दिया। अब हम केवल परपेंडिकुलर बताना है। थर्ड केस, थर्ड देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जीते थे, इसलिए हमको यही क्वेश्चन करना है। थर्ड कंडीशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्या करूंगा, थर्ड कंडीशन यहां पर बताऊंगा। थर्ड केस आई विल शो हियर। परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना हमको। सी, थर्ड केस, और जो मैं ब्रैकेट में बता रहा हूं समझते जाइए कि हमने क्वेश्चन के पार्ट्स प्रूव करते गए हैं। थर्ड केस में हम बता रहे हैं कि जब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मींस वी नो, अब हमने प्रूव कर लिया है ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ACP, ये हमने प्रूव किया है। ट्रायंगल ACP ये हमने प्रूव कर किया है, we have proved it। ओके बेटा, तो अब इससे क्या होगा, ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल इसको दे देते हैं हम 5 एंड 6। ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, व्हाई? CPCT से, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाई? लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री। Then angle 5 plus angle 5, because 6 किसके इक्वल है, 5 के, तब 6 की जगह 5 is equal to 180 degree। Then 1 angle 5 plus 1 angle 5, 2 angle 5 is equal to 180। Then angle 5 is equal to 180 divided by 2, 2 1 2, 2 9 18 and 2 0 0। Angle 5 is equal to 90 degree, means angle 5 क्या है, एंगल 5 क्या है, एंगल APB। So therefore angle APB is equal to angle APB और एंगल APC दोनों इक्वल है, is equal to एंगल ACP is equal to 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री होने से हम कह सकते हैं AP परपेंडिकुलर BC, जो हमें बताना था। AP bisects angle A as well as ये ना, AP is perpendicular bisector of BC, thus AP is perpendicular on BC, hence proved। ये लास्ट पॉइंट भी है।
करेंगे इस एक्सरसाइज में। ये सम ही सारे सम का मिक्सअप है, इसलिए 7.3 इज ओवर। इस सम को आप अच्छे से कर लें, बाकी सब आप कर लेंगे क्योंकि सभी सम इसमें लगभग इंक्लूड हो चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और समझ में आया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना बेटे। थैंक यू।